پھر قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے اور ووٹنگ جاری ہے. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. یہ اجلاس بجٹ پر بلایا گیا ہے اور ووٹنگ بھی جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں اس میں مختلف رہنماؤں نے اظہار خیال بھی کیا ہے. احسن اقبال نے کیا, اس سے پہلے مراد سعید نے بھی کیا, شاہ محمود قریشی نے بھی کیا. اور آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں انہوں نے اپوزیشن کے جتنے بھی رہنما تھے انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا اور حکومت پر شدید تنقید کی. اور انہوں نے کہا کہ جو پیٹرولیم کی جو مصنوعات بڑھائی گئی ہیں اچانک اس طرح یہ غیر قانونی ہیں اور بہت سارے جو مافیاز ہیں, پیٹرول پمپ مافیاز ہیں, ان کو انہوں نے جو بھی سہولت دینے کے لیے یہ جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں حکومت کی طرف سے, انہوں نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا. آپ تشریف رکھ لیں پلیز. ابھی کراچی سے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے. کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے. حملہ کی فائرنگ سے 6 افراد جام بحق ہو گئے ہیں. مرنے والوں میں 4 سیکیورٹی گارڈز اور 1 سب انسپیکٹر, 1 شہری بھی شامل ہے. پولیس کی جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے. برطانوی نشریاتی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج حملے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کر لی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ 4 دہشت گردوں نے اسٹاک مارکیٹ پر دستی بموں سے حملہ کیا, جبکہ آٹومیٹک ہتھیاروں سے اندھا دھند فائرنگ بھی کی اور اندر جانے کی کوشش کی. اطلاع ملتے ہی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ تبادلے میں 4 حملہ آور مارے گئے. سیکورٹی نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. حملے کے بعد تحقیقاتی اداروں نے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے. حملہ آوروں کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا گیا, جبکہ نادرا کی ٹیم نے دہشت گردوں کے شواہد اکٹھے کیے. کراچی پولیس چیف کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اسٹاک مارکیٹ پر دہشت گرد حملہ ناکام بنایا گیا, جبکہ حملہ کرنے والے 4 دہشت گرد کو بروقت کارروائی میں ہلاک کر دیا گیا. کراچی کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا ہے جس میں 4 مجرموں کو, 4 لوگوں کو موت کی گھاٹ سلا دیا گیا ہے. ان 4 کو پولیس اہلکاروں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا. جی بالکل, پولیس کا کہنا ہے کہ 4 دہشت گردوں نے اسٹاک مارکیٹ پر دستی بمبوں سے حملہ کیا اور آٹومیٹک ہتھیاروں سے اندھا دھند فائرنگ کی اور اندر جانے کی کوشش بھی کی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے لائن پر موجود ہیں ملک منور حسین. ان سے مزید جانیں گے. ملک منور حسین, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی, آج دہشت گردوں نے اسٹاک ایکسچینج تاہم جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد موقع پر ہی ہلاک کر دیے گئے تھے, جبکہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 1 سب انسپیکٹر اور 1 شہری سمیت 2 سیکورٹی اہلکار بھی شہید ہو گئے تھے. تاہم اس واقعات میں 8 افراد زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد دینے کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا, جن میں سے 3 افراد کی حالت وہ سیریس بتائی گئی ہے. تاہم اس حوالے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ڈی جی رینجر نے بھی بات چیت کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور بلوچستان لبریشن آرمی نامی جو کلندم تنظیم ہے اس سے دہشت گردوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اور وہ گاڑی کے اوپر سوار ہو کر آئے تھے, وہ گاڑی اپنی طویل میں سیکورٹی داروں نے لے لی ہے. تاہم گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہے رجسٹریشن وہ کوئی اور ہے, جبکہ 33 نمبر اس کا مختلف ہے. تاہم 33 نمبر کے ذریعے جی یہ گاڑی کے مالکان کا پتہ لگایا جا رہا تھا. ہم ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ گاڑی نجی بینک کے عمل کی جاتا ہے. تاہم ابھی کوئی اور مزید وہ کارروائی عمل میں نہیں آ سکی. تب ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے دہشت گردوں کے خلاف جلد جو ان کے سلیپر ہیں یا جو ماسٹر مائنڈ ہیں اور جو یہاں پہ ان کی معاونت میں ہیں ان تک جو ڈیٹا کے ان کی جو کالس ہیں جو موبائلوں کے ذریعے ان کی کالس ہوتی ہیں جو شواہد اور موقع واردات سے جو مواد وغیرہ جو ایمونیشن قبضے میں لیا گیا ہے اس کو جو تحقیقات کے ذریعے جو ہے وہ ان تک رسائی ہوگی جو کہ ان کے ماسٹر مائنڈ یا دیگر ان کے ساتھی ہیں. جی ملک منور, یہ بھی بتائیے گا کیا ایریا کلیئر کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اب سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, جو اس کا سرچ آپریشن تھا وہ کلیئر کر دیا گیا. بعد جو ٹریڈنگ کا عمل تھا اسٹاک ایکسچینج کا
उसको भी शुरू कर दिया गया था। 34,000 और 24 पॉइंट के ऊपर ये आज ट्रेडिंग जो है अमल जारी था। तमाम वहाँ पर तमाम तक जो सिक्योरिटी की पोजीशन है वो क्लियर कर दी गई है और वहाँ पर इजाफी रेंजेस की नौकरी भी तैनात कर दी गई है। तमाम ओवरऑल अगर हम शहर की बात करें तो वहाँ पर भी रेंजर्स और पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है और इस तरीके के मुश्तबा जो भी गाड़ियां हैं उनकी सख्त चेकिंग के अहकाम जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इब्तदाई कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और एरिया को भी क्लियर कर दिया गया। इसके साथ साथ वहाँ पर मज़ीद सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है और एक्सचेंज का सिलसिला नहीं रुक सका, वो ट्रेडिंग अभी भी जारी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को क्लियर करार दे दिया गया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक हमले के बाद तमाम जगहों की तलाशी ली गई। हमलावरों के कब्जे से भारी असला भी कब्जे में ले लिया गया। दूसरी जानिब हमले के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मामूल के मुताबिक जारी रहा। सिंध रेंजर्स के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को क्लियर कर दिया गया है। हमले के दौरान भी स्टॉक मार्केट में कारोबार मामूल के मुताबिक चलता रहा। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार तजारती लेन देन में मसरूफ है, जबकि ट्रेडिंग एक लम्हा के लिए भी मुअत्तल नहीं की गई। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले पर मज़म्मत, कहते हैं सिक्योरिटी इदारों ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने बहादुरी से मुकाबला करके हमले को नाकाम बनाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। शुहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मज़म्मत। मुराद अली शाह ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले को मुल्क की सलामती और मईशत पर हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। दूसरी जानब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटी फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस रेंजर्स की तरफ से बरवक्त कार्रवाई को सराहा। मुराद अली शाह ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को चौकस रहने की हिदायत जारी कर दी। मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला मुल्क की सालमियत और मईशत पर हमले की मुतरादिफ है। वबाई सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क दुश्मन अनासर नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। वाक़े की मुकम्मल तफसीलाती इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। गवर्नर सिंध ने IG को फोन करके वाक़े की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इमरान इस्माइल का कहना था कि स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटी फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला पाकिस्तान की मईशत पर हमला है। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं कि शरपसंद अनासिर को कराची का अमन हजम नहीं होता। सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दी की मज़मूम कोशिशें नाकाम बना दी। वज़ीर आला सिंध ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। शरपसंद अनासर को कराची का अमन हजम नहीं होता। सिक्योरिटी इदारों ने कराची में दहशत गर्दी की मज़मूम कोशिश बर वक्त नाकाम बना दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहते हैं पेट्रोल की कीमतें गैर कानूनी तरीके से बढ़ाई गईं। अवाम को फायदा देने की बजाय ऑयल कंपनियों को अरबों नवाज दिया गया। तहरीक इंसाफ के सियासतदान किस मुंह से अपने हलकों में दोबारा वोट मांगने जाएंगे। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये नालायक और नाअहल हैं, काम नहीं कर सकते। 40 डिग्रियों वाले कैसे पायलट्स को जाली करार दे सकते हैं। पायलट और सिविल एविएशन के आलमी सतह पर किरदार कुशी की गई है। पायलट को कोरोना के दौरान जबरदस्ती जहाज पर चढ़ा दिया गया। हुकूमत समझती है कि जिसको भी नौकरी मिलती है वो सियासी होती है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि लोगों को बेरोजगार करना किस किस्म का रिलीफ है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना करना जुल्म होता है। हुकूमत की कोरोना के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। ये कैसे अपने आप को तहरीक इंसाफ कहते हैं। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, हम पर फॉर्म पर पेट्रोल मसनूआत इजाफों को चैलेंज करेंगे।
फायदा हुकूमत नहीं तेल कंपनियों को हुआ है। वजीर आजम नोटिस ही लेना बंद कर दें। अद्वियात की कीमतें बढ़ी, नोटिस लिया, रिपोर्ट आई ना, कीमतें कम हुई। आटे का नोटिस लिया, इस पर कीमतें बढ़ गई। चीनी का नोटिस लिया, 50 वाली चीनी अब 90 रुपए में चलती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि अनाड़ी की ट्रेडिंग पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ेगी। आज पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान का सामना कर रहा है। माजी की तमाम तर कामयाबियों को सिफर करने के लिए मुस्तकबिल के साथ खेला गया। नून लीग हुकूमत ने 5 साल में सरमायाकारों का एतमाद पैदा किया था। 2018 में ऐसी हुकूमत आई जिसने लीडर ने कभी एक यूसी नहीं बनाई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि अनाड़ी की ट्रेनिंग पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। आज पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान का सामना कर रहा है। माजी की तमाम कामयाबियों को सिफर करने के लिए मुस्तकबिल के साथ खेला गया। नून लीग हुकूमत ने 5 साल में सरमायाकारों का एतमाद पैदा किया। 2018 में ऐसी हुकूमत आई जिसके लीडर ने कभी एक यूसी तक न चलाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजीर मवासलात मुराद सईद का कौमी असम्बली में अपोजिशन को मनाजरे का चैलेंज। कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में नूरा कश्ती खेलते हैं, लेकिन अंदर से दोनों एक हैं। पाकिस्तान ने कोरोना से निपटने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए, दुनिया ने तारीफ की, आज सब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपने खिताब में ओपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि ये दहशत गर्दी इसी को मानते हैं जिसे अमरीका कहता है। इमरान खान ने जिस स्मार्ट लॉकडाउन का विजन दिया था, आज गैर मुल्की भी एतराफ कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुनाजरा करना चाहते हैं तो कर लें, मुल्क भर में जिस हल्के में भी चाहें बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़वा लें, मुकाबले में इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। विफाकी वजीर मुराद सईद की तकरीर के दौरान ओपोजिशन ऐवान वॉकआउट कर गए, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने शाह महमूद कुरैशी को ओपोजिशन को मनाने का टास्क दे दिया। ओपोजिशन के ऐवान से वॉकआउट करने पर मुराद सईद का कहना था कि स्पीकर साहब, जब मैं तकरीर खत्म कर लूंगा ओपोजिशन खुद ही वापस आ जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान कभी इस्तीफा नहीं देंगे। ओपोजिशन सुन ले, तहरीक इंसाफ के सब टाइगर्स इमरान खान के साथ खड़े हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ओपोजिशन से सवाल है, जब मुराद सईद तकरीर करते आते हैं तो आप भाग क्यों जाते हैं? ऐवान में इमरान खान का टाइगर मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान और उनके नजरिए के साथ खड़े हैं और कौम सुन ले, इमरान खान एक मकसद के लिए आए हैं। वजीर खारजा ने कहा कि मैं इत्तेहादी जमातों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने 100 जतन कर लिए, लेकिन वो चट्टान की तरह कायम हैं, लेकिन हम भी अपने नजरिए का सौदा नहीं करेंगे। अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने आमदनी से ज़ायद असासाजात केस में सदर नून लीग शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तोसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत हुई, जिसके दौरान ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को आगाह किया कि उनके मुवक्किल की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दे दी गई है। शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज हैं और उनकी रिकवरी आहिस्ता होती है। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से आइसोलेशन में हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 जुलाई को शहबाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से कोरोना टेस्ट करवाने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि जमानती मुशर्रके जमा करवाने की तारीख में भी 7 जुलाई तक की तौसीह कर दी गई। अब आपको हम खबर देंगे, करतारपुर राहदारी को सिख यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। करतारपुर राहदारी तकरीबन 3.5 माह के बाद दोबारा से खोल दी गई है। जी हां, सिख यात्रियों का पहला 23 रुकनी ग्रुप दरबार पहुंच गया है। कोरोना के पेश नज़र SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी हुक्काम ने करतारपुर खोलने के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए थे। करतारपुर गुरुद्वारा में सिख महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीब होगी। करतारपुर गुरुद्वारा में किए जाने वाले इंतजाम के तहत महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की मरकजी दुआया तकरीब भी मुनक्कद की गई।
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अपोजिशन रोज़ हुकूमत ख़त्म होने के बयान दे रही है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वो अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करती है जो 30 साल हुकूमत कर चुकी। इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ ही बदल सकती है। माफिया का पीछा छोड़ दूं तो सब अच्छा हो जाएगा। ये मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आए हैं, उनके साथ कैसे हाथ मिलाऊं? बहुत पहले बता दिया था कि मुश्किल वक्त आएगा तो ये सब इकट्ठे होंगे। ये आवाम के मफाद में नहीं, अपनी करप्शन के दिफा के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है, एतिहादियों के साथ लेकर चलेंगे। मुश्किल तरीन हालात में मजबूरन किसी मुश्किल फैसले को करना पड़ा। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत संभाली तो मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं थे, मेशत बेहतर हुई तो कोरोना वायरस आ गया। अरकान पार्लियामेंट के मसाइल से वाकिफ हूँ, मुश्किल तरीन हालात में भी मजबूरन मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। अब आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली में नए साल का जो बजट है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। ये बजट मंजूर कर लिया गया है जिस पर बहुत सारे इख्तलाफात ओपोजिशन की जानिब से सामने आए थे और आज इसके हवाले से वोटिंग का अमल जो है वो कौमी असम्बली में जारी था। इससे पहले तमाम अरकान ने अपने अपने इजहार ख्याल किए थे, उसके बाद इसके हवाले से वोटिंग होना थी जो जारी थी कुछ टाइम पहले और अब खत्म हो चुकी है और जिसके नताइज ये सामने आए हैं कि ये जो बजट था वो मंजूर कर लिया गया है और ये बजट कसरत राय से मंजूर किया गया है। आपको बता रहे हैं कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बजट को मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली ने बजट 2021 और 20 मंजूर भी कर लिया गया है और आपको ये भी बताएं कि बजट की जो वोटिंग हो रही थी उसके दौरान अपोजिशन की तरफ से भरपूर मुजाहरा किया गया और नारे भी लगाए गए, लेकिन आपको अब ये बताएं कि बजट मंजूर हो चुका है और कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ये बजट मंजूर कर लिया गया है और बजट की मंजूरी के दौरान और इजहार ख्याल के दौरान ओपोजिशन की जानिब से शोर शराबा भी किया जाता रहा और ओपोजिशन वॉकआउट भी कर गई थी, जिसपे मुराद सईद ने यह कहा था कि स्पीकर साहब जब मैं बैठ जाऊंगा तो ओपोजिशन खुद ही वापस आ जाएगी, जबकि शाह महमूद कुरैशी को टास्क दिया गया था कि वो जाकर ओपोजिशन को लेकर आए, उनको मनाकर लेकर आए। बुलेटिन की जानिब बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज 2,06,000 से ज्यादा हैं। मजीद 49 मरीज इंतकाल कर गए, अमवात 4,167 हो चुकी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 95,407 मरीज सेहतियाब हो गए। मुल्क भर से कोरोना वायरस के मजीद 3,557 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 2,06,512 हो गई। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कोरोना के अब तक 74,778 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में 80,446, खैबर पख्तूनख्वा में 25,778, बलोचिस्तान में 10,376, इस्लामाबाद में 12,643, आज़ाद कश्मीर में 1,049 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,442 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बाद सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 1,681 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 1,269, खैबर पख्तूनख्वा में 922, इस्लामाबाद में 127, गिलगित बल्तिस्तान में 24, बलोचिस्तान में 116 और आज़ाद कश्मीर में 28 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 23,009 टेस्ट किए गए हैं और जबकि मजमूई तौर पर 12,62,162 टेस्ट किए जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीज 1,24,000 से बढ़ गए। हलाकतों की तादाद 5,04,000 हो चुकी है। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 55,53,000 से ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा 57,670 अफराद की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में कोरोना से मजीद 123 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,28,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में 26,37,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी। ब्राजील अमेरिका के बाद 13 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस वाला दूसरा मुल्क बन गया।
जहां कोरोना से मजीद 40 अफराद हलाक हो गए हैं। अमवात की तादाद 57,600 से ज्यादा है, जबकि केसेस की तादाद 13,45,000 से तजावुज कर चुकी। मजीद 104 अफराद मौत के मुंह में चले गए। रूस में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 6,34,000 से तजावुज कर गई। भारत में कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों में 384 अफराद की हलाकत हुई, जिसके बाद हलाक होने वालों की तादाद 16,400 से तजावुज कर चुकी, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 5,49,000 से ज्यादा है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 43,500 से तजावुज कर गई, जबकि 3,11,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर भी हुए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 18 अगस्त को होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। शेड्यूल के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात रवां साल 18 अगस्त को होंगे। कानून साज असम्बली अपने आइनी मुद्दत की तकमील के बाद 4 रोज़ कबल तहलील कर दी गई थी। नई हुकूमत के इंतखाबात के लिए असम्बली की तहलील के 60 रोज़ के अंदर नए इंतखाबात कराना जरूरी हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन 24 हल्कों में इंतखाबात का इनेकाद करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के जरिए कोरोना वायरस की वबा से निपटना अहम है। इत्तलात और नशरियात के मुताबिक मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना वायरस के वबा फैलने के आगाज में ही मुतवाज़िन जिंदगी और रोजगार पर बुनियादी तवज्जो मरकूज रही है। स्मार्ट लॉकडाउन और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के जरिए इस वबा से निपटना अहम है। हमारी कौम ने खुद को सूरत हाल के मुताबिक ढाला और मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने में नुमायां बेहतरी दिखाई है। बात करेंगे बिजली के हवाले से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद। बात करेंगे शहर कायद के हवाले से, जहां के इलेक्ट्रिक के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से बिजली गायब है। शहर कायद में कहीं 12 घंटे बिजली गायब होने की वजह से शदीद गर्मी है। शहरियों को दिन में चैन है और ना रात को सुकून। कराची में कोरंगी, PECHS, गुलिस्तान जोहर और शाह फैसल मिली, लियारी, लॉन्डी, गुलशन इकबाल और फेडरल बी एरियाज में दीगर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे से 7 घंटे तक है, जबकि शहर का कोई इलाका इस वबाल से महफूज नहीं। पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। क्वाडकॉप्टर LOC के तत्ता पानी सेक्टर में 850 मीटर पाकिस्तानी हदूद में आ गया था। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ट्वीट में बताया कि पाक फौज ने रवा साल 9वां भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। हालिया तबाह होने वाला भारतीय क्वाडकॉप्टर LOC से 850 मीटर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था। भारतीय जासूस ड्रोन LOC के तत्ता पानी सेक्टर में गिराया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ सियासी हलचल के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मनफी सियासत को परवान चढ़ाने वाली ओपोजिशन की रही सही साख भी खत्म हो चुकी है। लैपटॉप के सामने बैठकर फोटो सेशन करवाने वालों ने शोबा सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया। अपने दौर में आलमी इक़दाम करते तो उन्हें इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़ता। साबिक दौर में अस्पतालों और दही बुनियादी मराकज़ सेहत पर तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि ओपोजिशन ने कोरोना जैसी वबा पर कौम में इंतशार पैदा करने की कोशिश की। अपोजिशन रहनुमाओं के सीने में दिल है, ना दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर आवाम को तनहा छोड़कर ज़बानी जमा खर्च पर लगे हुए हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि ड्राइंग रूम में बैठकर दावे करने वाले बेअमली का नमूना पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ इज्तिमाई फैसले किए। कोरोना वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल का रोज़ जायज़ा लेकर फैसले किए जाते हैं। आवाम की ज़िंदगियों की हिफाजत और मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए वसाइल में कमी नहीं आने देंगे।
भारत ने मकबूजा कश्मीर में आबादी तनासुब बदलने के घिनौने एजेंडे पर अमल शुरू कर दिया है। 25,000 भारतीयों को शहरियत के इक़दाम को पाकिस्तान ने मुस्तरद करते हुए आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील कर दी है। भारतीय इसराइल के नक्शे कदम पर चल पड़ा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी तनासुब बदलने का घिनौना खेल खेला जा रहा है। मोदी सरकार ने 25,000 भारतीयों के जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय इक़दाम को मुस्तरद करते हुए इसे सलामती कौंसिल की करारदादों और जनेवा कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी भी करार दिया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को अपील की है कि भारत को जम्मू कश्मीर में आबादी की तनासुब तब्दील करने से रोकने के लिए मुदाखलत करे। भारत पर जोर दिया जाए कि गैर कानूनी तौर पर जारी किए गए तमाम डोमिसाइल मनसूख करे। मकबूजा कश्मीर में 12 साल लड़के को ट्रक दलेक कुचलकर शहीद करने वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी चीख उठी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर में मजालिम के खिलाफ मुजाहरे के दौरान भारतीय फोर्सेज ने ट्रक 12 साल लड़के पर चढ़ा दिया, जिससे वो शहीद हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बच्चे की शहादत को इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर योनाश कुमार ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए वाक़े को जेनेवा कन्वेंशन की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा है कि फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों को पकड़कर सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। खबरें कुछ मौसम के हवाले से। मौसम का हवाला आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी। बारिश के बायस 45 से ज्यादा फीडर ट्रिप। बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में प्री मानसून की बादलों ने खूब रंग जमाया। मरी में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी हुई, जिससे मलका कौसार का हुस्न मज़ीद निखर गया। लाहौर में वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के बायस 45 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए, जिसके बाद शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और मरतूब मौसम का राज बरकरार है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शमाली मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान है। और अब टुडे इंटरनेशनल। आलमी उफक से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि चीन ने लद्दाख में एक बार फिर से भारतीय कागजी शेरों को धूल चटा दी है। मजीद 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया गया। चीन ने लद्दाख में 3 मकामात का कंट्रोल हासिल कर लिया। झड़प में 2 भारतीय फौजी मारे गए। चीन ने LAC पर मजीद 3 टेक्टिकल पोजीशंस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इनमें दौलत बेग ओल्डी और गलवान वैली के अहम हिस्से भी शामिल हैं। भारतीय फौज पेंगांग में फिंगर ट्रूथ तक महदूद होकर रह गई है। चीनी फौज ने इलाके में मशक़ें भी की। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों के लिए वापसी के दरवाजे खुल गए। दुबई में पाकिस्तानी सफारत खाने के पाकिस्तानियों को टिकटों की फराहमी का ऐलान कर दिया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों की हुकूमत पाकिस्तान के खसूसी इंतजामात के तहत ओवरसीज की वापसी का अमल जारी है। दुबई में फंसे पाकिस्तानियों को वापसी की टिकटों की फराहमी का सिलसिला शुरू हो जाए। पाकिस्तानी कौंसल जनरल अमजद अली ने तस्दीक की है कि वतन वापसी जाने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। अमेरिका में पुलिस के हाथों स्याह फॉर्म की हलाकत के बाद अमेरिका में स्याह फॉर्मों के मुजाहरों में तारीखी मुजस्मों को नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्याह फॉर्म मुजाहिरीन पर सीखपा कहते हैं मुजस्मे गिराने वालों को जेल भिजवा देंगे। अमेरिकी सदर ने स्याफा मुजाहिरीन को जेल भिजवाने की धमकी दे दी। कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। अमेरिकी शहरों में मुजस्मे गिराने वालों को जेल भिजवाएंगे। शहरों में हालात को मामूल पर रखने के लिए तमाम तर इक़दामात को यकीनी भी बनाएंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमेरिकी सदर ने तारीखी मुजस्मों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए कानून पर दस्तखत भी कर दिए।
کینیڈا میں کار چور گینگ کا گاڑیاں چوری کرنے کا انوکھا طریقہ. چوری گروہ گاڑی کو ٹکر مارتا ہے. ڈرائیور کے باہر نکلنے پر بحث میں الجھا کر چور گاڑی لے کر فرار ہو جاتے ہیں. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور پہلے گاڑی کو ٹکر مارتا ہے. ڈرائیور کا باہر نکلنے پر چور ڈرائیور کو بحث میں الجھاتا ہے، جبکہ دوسرا ساتھی سائیڈ سے گاڑی میں داخل ہو کر گاڑی لے کر فرار ہو جاتا ہے. جیسے ہی گاڑی چوری کی واردات پوری ہوتی ہے، بحث کرنے والا شخص بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے.